खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। Good morning to one and all present here. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and a precious day that brings together so many special people like yours. This is Usha Bhakuni. This is Preeti Papola. Your host and host of the day. On the behalf of Excellent Academy, welcome you all to our monthly reward and recognition ceremony. We don't grow when things are easy. We grow when we face many challenges. ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे आज हमारे मंच पर, पधारे हैं आज हमारे मंच पर वे मेहमान। निवेदन करती हूँ जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान। We are very lucky to have a real zen and versatile personality. Our Dr. Sivan Chand Pandey. Please welcome him. Happy round of applause. So let's begin the reward ceremony. Struggle is never-ending process. Struggle is never-ending process. Freedom is never really won forever. You earn it and win it in any generation. So put your hands together for our star of the week, Beena Tomkyal from morning batch. And Manish Tilara from evening batch. जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को, झोंक दे खुद को, इस आग में यही आग तुझे हीरा बनाएगी। सो गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्री असेसमेंट टॉपर मिसेस आशा पांडे फ्रॉम मॉर्निंग बैच। मिस समिता जोशी फ्रॉम इवनिंग बैच। Knowledge is power. Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress in every society, in every family. So to polish your knowledge a little, today we have a GK question for you. Does it sound interesting? Yes. Okay. Now raise your hands if you know the answer. Question number first. When was the mission Chandrayaan 3 launched? Yes, Beena? One Yes. second. क्या बोला? चंद्रयान 3 When was the mission Chandrayaan 3 launched? 14 जुलाई 2023। Yes. So 14 जुलाई 2023 क्यों नहीं? Yes. 14 जुलाई 2023 तो सही है। 14 जुलाई 2023 सही है। Mix up थोड़ा। English? It is English. And question number 2. When did Chandrayaan 3 land on the surface of the moon? Yes, you can. 23 August. One second. Wait. 23 August 2023. Right. And third question is, which country hosted the G20 summit in 2023? Now last one. Last one. Yes. India. Very good. Very good. India is right answer. Yes. इंडिया। And question number 4. When was the mission Aditya L1 launched? बोलो. Yes, you can. 2 September 2023। Yes. Have you done?
And last question, which country will host the next G20 summit? Yes, Ajay. Ajay. Brazil. Very good. Don't take two, huh? Take one back. Be honest. Now we have one more activity for you. That is say me right. So come forward, pick a chit and tell the correct pronunciation of the word. So let's start. Alright, who would like to come first? Alright, Akshay, come. Let's see what is the word. Plumber. Plumber. Alright. Plumber. That may be correct. Anybody else who would like to try? Last. You want to? Sir, I can do. Plumber. Yeah. So we silent letter Plumber. E. So that is plumber. Very good. You want to? Alright. That's very brave. Let's see what is the word. Nike. Yes. It is Nike. Nike. Wow, that's correct. Alright, come. Data. Yes, that is data. Okay, come. R. R-O-U-R. R. That's correct. Wonderful. Sir, executive. Executive. Huh? Executive. Exactly. It is very close. So it is executive. E-X-E-C-U-T-I-V-E. Executive. Well done. Very good. That's for you. One. One. So it is W-O-N. One. That's correct. That's for you. Where? Where? Alright, could be correct. Where? Be here. Anybody else would like to try? W-E-R-E. Alright, please come. W-E-R-E. Where? What is the correct answer? Yes, that's for you. Good try. But that is word. People. People. Yes. P-O-P-L-E. Well done. There is no secret to success. There is no secret to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. These lines suits very well to our runner-up. She learns from her mistakes and actively participates in every activity. And I think everyone feels very comfortable with her. So guys, make some noise for our runner-up, Mrs. Priti Papola. Every day may not be good, but there is something good in every day. A very good morning, respected sir and chief guest sir and all my dear friends. This is Preeti. First of all, thank you for giving me this opportunity and this award. Thank you sir, and a lot of time supporting me, my best mate. Thank you so much, and thank you so much sir. Guidance me, support me, motivated me. Thank you. उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। सीरियस लुक और पंक्चुअलिटी है जिनकी पहचान, क्लास का माहौल बना देती है उनकी मुस्कान। ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विथ ब्रेन, मिसेस उषा भाकुनी, स्टार ऑफ द मंथ फ्रॉम मॉर्निंग बेस्ट। Success is a state of mind. If you want success, then think about yourself as a success. A very good morning to our respected sir, honorable guest, and my dear batchmates.
Today I am standing here with gratitude and excitement. First of all, I would like to thank our mentor, our teacher Manoj Kandpal sir for his encourage and guiding me a lot. When I firstly came here, there is a lack of confidence inside me in speaking English. But because of you guys, I gained confidence slowly. And today I'm here because of you. So also a very thanks to all of you guys and for the Excellent Academy also. At last I want to say that ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता. ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता. जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता. जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता. हार को अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्त. हार को खुद से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता. थैंक यू. An evildoer, an icebreaker, very punctual and friendly, a perfect example of an old head and young shoulder. So put your hand together for our star of the month, Sasank Pandey from Evening Best. Good morning, respected sir and our honorable chief guest. Today I am so happy and thankful for getting the Star of the Month award from Excellent Academy. First, I would like to thank Manoj sir for being so supportive and helped me reach this point. And secondly, I would like to thank all of my friends who have helped me reach this point. Thank you. Time for next activity, guys. That is translation quiz. We will say a sentence in Hindi and you need to translate that into English. Raise hand if you can. First question, जो हो गया सो हो गया. Yes, Rohit. Rohit. Akshay. What is done is done. मेरी नाक मत कटवाओ. The red one. Yes, you. Don't let me down. Third one is मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. Give a hand every time. I will not spare you. Fourth one is ऐसा नहीं है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ. Or is It's not like I don't eat non-veg. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उसने तुम्हारी मदद नहीं की तो. What if he doesn't help you? मैंने कहा था मोमोज खाने को. Did I ask you to eat momos? मेरे मना करने के बावजूद वो पार्टी में चला गया. I think Akshay. Yeah. Despite my refusal, he went to party. And the last one is आइसक्रीम खानी है तो खा लो. If you want to eat ice cream, eat it. Wow. कि तोड़ना है हर पिंजरा. कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है. कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है. मंजिलें जमीन भर नहीं, आसमान अभी बाकी है. लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी. लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी. बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है. Guys, now I'm going to announce the name of that person who is not an icebreaker, but he is a dark horse. He has an athletic body and sharp mind. He has a zeal to learn. Give a big round of applause for the student of the month, Suraj Singh Mehra. Dream big, stay positive. Dream big, stay positive. Work hard and enjoy the journey. A very good morning, respected sir, honorable guest, and all my dear friends. So almost मेरे को यहाँ पे 2 महीने होने को हैं. अभी इससे पहले मैं अभी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ. मैं पिछले 8 सालों से स्पोर्ट्स में हूँ और इसलिए 19-20 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. तो मेरे को इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लगती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मैं कर नहीं पा रहा था. तो काफ़ी जगह इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता था, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को टफ लगता था. तो फिर मैंने ऑनलाइन देखा सर का, तो मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया और मैं इधर आया. स्टार्टिंग में 1-2 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आती हैं कहीं भी, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, सीखने की कोशिश की और सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, पर्सनली भी सपोर्ट किया. और काफ़ी ज़्यादा मैं जो भी पूछता था ऑनलाइन कॉल करके या किसी भी थ्रू अगर सर से पूछता था तो मेरे को सपोर्ट करते थे.
सो मेरा मानना ये है, आप अगर खुद पे भरोसा रखते हैं किसी भी चीज़ को करने का, अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी चीज़ में, तो डेफिनेटली वो चीज़ हमें आएगी। मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती थी इंग्लिश, लेकिन नाउ अभी मैं समझता हूँ कि इंग्लिश ज़्यादा नॉट बिग डील। इंग्लिश को सीखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं ये सोचता हूँ इस बार। और लास्ट में और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब हमें आगे जाने का मौका मिलता है या कहीं भी कोई भी स्टेज हो, चाहे यहाँ हो या कहीं और हो, तो हमें जाना चाहिए। बहुत से बहुत क्या होगा, हमारा गलत होगा बहुत से बहुत, लेकिन हम लर्निंग सीखेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो फाइनल में आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Now, I would like to request sir to honor our guest with a token of gratitude. Now I request sir to say some words. एक्सलेंट एकेडमी के संचालक आदरणीय श्री मनोज कांडपाल जी, इस हॉल में उपस्थित सभी प्रिय छात्र छात्राओं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आप लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया, विशेष रूप से जो कांडपाल जी हैं यहाँ पर इस संस्था को चलाते हैं। मुझे आपने अतिथि बनाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन को कुछ भागों में बांट करके अपने टारगेट तय कर लेने चाहिए। नेक्स्ट 5 ईयर में हमें क्या करना है, ये हमें पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट जिस काम को हम करने जा रहे हैं, उसको अगर हमें 1 साल के अंदर करना है, सपोज आपकी पढ़ाई का काम है, तो आपको ये तय करना होगा कि मैं एंड ऑफ द ईयर जो है 90% से ऊपर लाऊंगा, या मैं इस क्लास को पास कर लूँगा। उसके 2-4 साल बाद मुझे फिर जॉब के लिए तैयारी करनी होगी, तो मैं किस तरह से उस रास्ते को पार करूँगा। ये सब कुछ हमें प्लान के तहत चलना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम रास्ते में डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और हमें समझ ही में ना आए बीच में कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि कई रास्ते सामने आएंगे और पता लगा कि कहीं भी हमारी सफलता वहाँ पर नहीं बन पा रही है, तो अब क्या करें। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि आप टारगेट तय कीजिए। मैंने भी कहा आपसे टारगेट तय कीजिए, और ऐसा भी कहते हैं कि आप एक टारगेट तय करो और उसके पीछे लग जाओ, तो आपको टारगेट अचीव होगा। लेकिन आज की सोसाइटी में मैं देखता हूँ, बच्चों के सामने अगर उन्होंने एक टारगेट तय किया और इन केस उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, ऐसा होता है। 100 बच्चे कहीं पर कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 उसी लाइन पर चले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद कुछ मेडिकल चुनते हैं, कुछ इंजीनियरिंग चुनते हैं, कुछ और तीसरी लाइन में जाते हैं, तीसरी चौथी ऐसे उनके हायर बने हुए हैं ऑर्डर्स। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हम क्या करें। इसलिए आपको टारगेट देखो बच्चों 1 2 3 ऐसा भी करना चाहिए। ये हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर क्या, आपके पास बी प्लान भी होना चाहिए, यहाँ तक कि सी भी होना चाहिए। क्योंकि जीवन डाइवर्सिफाइड है, ऐसा नहीं है कि हम एक ट्रैक पर चलेंगे और वो हो ही जाएगा। हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, हम करना चाहेंगे उसको। लेकिन ना हो तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो, थर्ड हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप जो क्या करेंगे, फिर आपके पास सेकंड थर्ड ऑप्शन आपने अचीव कर लिया है तो आप जंप कर सकते हैं। फिर आप अपलिफ्ट कीजिए, वहाँ से आपको एक बेस मिल जाएगा ना, कहीं पर कुछ ना कुछ बेस मिलेगा, तो आप आगे बढ़िए और जिसको आप लेना चाहते थे उसको लीजिए। फिर आपके वो टारगेट जो हो सकता है 35-40वें साल में पूरा हो, जिसको आप 25 ईयर में लेना चाह रहे थे, वो 25 ईयर में तो हम नहीं ले पाए किसी कारणवश। लेकिन वो परिस्थितियाँ देखो बच्चों, आपका ही दोष नहीं है उसमें, रीज़न केवल आप ही नहीं है, रीज़न पूरा समाज है, पूरा देश है, पूरी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम काम नहीं कर पाते। तो आप अपने को दोष मत दीजिए कि नहीं हम नहीं कर पाए। जो बच्चे अपने को दोष देते हैं, ऐसा समझते नहीं, समाज की परिस्थितियों को नहीं एनालाइज कर पाते हैं या उनको ऐसी बातें नहीं डिस्कस की जाती हैं, तो वो बच्चे बड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार तो सुसाइडल मोड में चले जाते हैं। आपने कोटा के एग्जाम्पल देखे होंगे, अभी इसी बीच काफ़ी बड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा नहीं मेडिकल डॉक्टर ही बनेगा और नहीं कर पाया तो उसको एक ही टारगेट दिखता है कि मैं सुसाइडल मोड पर चले जाऊं। ऐसा नहीं, जीवन जो है हमें मिला हुआ है, तो इस जीवन का आप उपयोग कीजिए। और
ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़, इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ रखी हुई है। वैरायटी ऑफ थिंग्स यहाँ पर है। ये नेचर ही वैरायटी पर है, बिल्कुल वैरायटी से भरा हुआ है। जब हम प्रकृति को देखते हैं, देखो हम प्रकृति के पार्ट ही तो हैं, प्रकृति के पार्ट, हम एक अंग हैं इसके। हम कोई बहुत ज़्यादा अपने आप चीज़ों को हैंडल करने वाले लोग नहीं हैं। कुछ थोड़ा बहुत हम अपनी सराउंडिंग अपना कर सकते हैं, इतना थोड़ा बहुत हम चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ों को हम, देखो हम सूर्य की दिशा को थोड़ी मोड़ सकेंगे, हम कोई ऐसा बड़ा काम थोड़ी कर पाएंगे कि बिल्कुल ही सारी चीज़ें बदल जाए, ऐसा नहीं है। हम इसके पार्ट हैं, हमें उसमें फिट होना है। अब ऐसी परिस्थितियों में जब ये बच्चे इस तरह से काम करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। ये गाइडेंस काउंसलिंग का पार्ट है, ये होना चाहिए। आप फ्यूचर में आप लोगों को भी पता हो, आपके और जो साथी हैं, जो बच्चे हैं, आपके आगे परिवार होगा, वो सब आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। मैं वैरायटी कह रहा था आपसे। देखो नेचर में जैसे पेड़ पौधे, पत्तियाँ, नदी, पहाड़ सब हैं। आपने देखा होगा कि ये कोई भी इन चीज़ों में मतलब दो चीज़ें एक समान नहीं होती। आप देखेंगे इतने लोग बैठे हुए हैं, बच्चे सब एक समान नहीं होते, हम इतने लोग हैं नहीं होते हैं। हर जगह अलग अलग, बिल्कुल ये प्रकृति ने बनाया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल और यूनिक है। वो जब यूनिक है तो वो यूनिक ही काम करेगा। वो सेम काम कर ही नहीं सकता, सेम हो ही नहीं सकता। हमारी पोस्ट सेम हो सकती है, काम समान हो सकता है, लेकिन हमारे तरीके ज़रूर अलग होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता संभव। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि यहाँ पर सब अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, इसलिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, संभव है। सब अलग अलग किया जाना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जो भी हो वही ठीक है, उसी के अनुरूप हमें चलना चाहिए। अब एक बात में इसमें मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो हम सब कुछ करते हैं, है ना, हम नौकरियां भी करते हैं, घर मकान परिवार सब कुछ सीखते भी हैं, सब कुछ कर लिया हमने, करते जाते हैं हम बिल्कुल, और ऐसे करते जाते हैं जैसे मशीन काम करती है। जबकि हम मनुष्य हैं, हम मशीन नहीं हैं, है ना। मशीन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। गाड़ियाँ चलाते हैं हम लोग, इतने बड़े बड़े सिस्टम चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, लेकिन वो भी रेस्ट उनको भी चाहिए। मशीनों को भी रेस्ट चाहिए, लेकिन मनुष्य रेस्ट लेने की स्थिति में नहीं है आज। बिल्कुल फिक्स, हम बिल्कुल मैकेनिकल वे में चलना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये छोड़नी पड़ेगी बच्चों कि हम मशीन की तरह चलना जो है छोड़ें। ज़रा प्रकृति को देखिए, इस प्रकृति में बहुत आनंद करने वाली चीज़ें हैं, देखने सुनने वाली चीज़ें हैं, उनको महसूस कीजिए, अपने जीवन को महसूस कीजिए आप। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक ट्रैक पर चले हुए हैं और उसमें आप बिल्कुल चलते जा रहे हैं और एक दिन अचानक हम 70-75 साल के हो गए और पीछे देखा तो फिर को पता लगा आज कल तो हमें ये भी करना था, वो भी करना था, सारी चीज़ें तो छूट गई। तो छूटती जाती हैं 50 साल 40 साल के बाद। फिर शरीर में ताकत नहीं होगी, कई और चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हम उस तरीके से चलेंगे नहीं, और बाद में लगेगा अरे ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें तो छूट गई। तो टाइम तो लिमिटेड है, इसलिए जीवन में पैरेलली चीज़ों में चलना है। पैरेलल आज का दिन है तो आज के दिन जो आपको आनंद देने वाली चीज़ें हैं उनको कीजिए, 5-10 मिनट कीजिए। अब देखो आनंद देने वाली चीज़ों, मैंने कहा कि आनंद देने वाली चीज़ें आप कीजिए, लेकिन आनंद देने वाली चीज़ों को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई गलत काम करने में हमें आनंद आ रहा तो हम उसको करें, ऐसा नहीं। जो सही काम है उसको करना है, उसी में आनंद की अनुभूति करनी है। जीवन का लक्ष्य है खुशी प्राप्त करना, ठीक है। आफ्टर ऑल जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम खुश हों, हैप्पी लाइफ हो, हमारे मन में खुशी उत्पन्न हो। किसी भी चीज़ में हम यही करना चाहते हैं। जैसे अभी बच्चों को अवार्ड मिला, उनको खुशी हुई, इंस्टीट्यूट आगे चल रहा है, सर को खुशी हुई, हम नौकरियां कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, हमें उसमें खुशी हो रही है, लेकिन उस खुशी को महसूस करना है, तभी तो जीवन है, जीवन तभी पता लगेगा। अब मैं इसमें एक दार्शनिक का एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको, कहीं ज़्यादा ना हो जाए काम तो कैंटीन का। तो देखिए एक मैस्लो हैं, एक दार्शनिक बहुत बड़े, उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से चलता है। जनरलाइज करी चीज़ें उन्होंने, तो जनरलाइज करने में जब उन्होंने बताया पहला स्टेप जीवन का किसी भी प्राणी का, वो बताया उन्होंने कहा कि ये जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं जो होती हैं, ये पहली आवश्यकता प्राणी की है। कोई भी व्यक्ति है हम सब में, या कोई बाहर का व्यक्ति हो, जो भी हैं,
चूँकि मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, यहाँ NDPG कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, कई हमारे छात्र होंगे इसमें। तो बच्चों जो हायर एजुकेशन में जो लोग जॉब में आना चाहते हैं, जो इसमें नौकरियों में आना चाहते हैं, जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, देखो ये करने के लिए मैं शॉर्टकट में बता दूँ, वैसे तो बहुत लंबा इसमें समय लगता है अच्छी तरह समझाने में। देखो सबसे पहले तो आपको PG कर लेना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट। PG का मतलब हुआ आप MA कीजिए, MSc कीजिए, M.Com कीजिए। मेडिकल वाले हैं तो वो अपना उसमें MS वगैरह वो करेंगे, इंजीनियरिंग वाले हैं M.Tech करेंगे। PG करना बहुत ज़रूरी है। PG विथ 55% मिनिमम। नीचे भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, BA-BSc लेवल का और इस पर। उसके बाद आपको जो अगला स्टेप करना है वो आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। UGC कराती है उसको, हर वर्ष कराती है। एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है संबंधित विषय में। उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉलेजेस में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से या यूनिवर्सिटी खुद भी करती है, वो एडवर्टीजमेंट निकालती है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जो वहाँ एंट्री पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर इन आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशलॉजी जो जिसका है, उसको आप आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन करेंगे तो स्क्रीनिंग होगी। ऐसा है वहाँ तो 1000, 2000, 5000 बच्चे आएंगे। ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट होती है। ये ऐसा नहीं होता कि केवल उत्तराखंड के इसमें रखे जाएंगे या उत्तर प्रदेश के रखे जाएंगे। सब पहले ओपन होती है, रेगुलर पोस्ट होती है, गजेटेड पोस्ट होती है, इसमें सब पहले ओपन। सारे बच्चे आते हैं, स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आपका ये एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा सब कुछ। अगर आप उसमें टॉप में हैं तो फिर अगेन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा तो सभी को किया जाता है, लेकिन अगर इंटरव्यू होता है, अभी इंटरव्यू की व्यवस्था है एट प्रेजेंट, तो केवल उन्हीं को किया जाएगा जो टॉप ×5 या ×8 में होंगे। टॉप ×5 ×8 का मतलब ये है कि अगर 20 पोस्टें हैं तो 20×5 या 20×8 तक आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा रूल है उसमें। तो 100 लोगों को बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू होगा और उसमें आपसे सब्जेक्ट की पूरी जानकारी ली जाएगी, पढ़ाने की जानकारी ली जाएगी कि आप पढ़ाते कैसा है, क्योंकि पढ़ाने का काम होता है, और उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो वो अगर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो अपनी इस तरह से तैयारी रखते हैं। तो ये भी एक अच्छा जॉब है ना। बच्चे पूरा इंजीनियरिंग और मेडिकली पे फोकस हो गए हैं आजकल। टीचिंग भी एक बहुत बड़ा जॉब है जिसमें आप नीचे प्राइमरी से लेकर हायर तक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कई और भी फील्ड हैं जिसमें मन हो वो करें, और इस तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सर का कई दिनों यहाँ सुना है, बाहर बैठता हूँ मैं कई बार, बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं। लैंग्वेज के अलावा जो अन्य चीज़ें बताते हैं वो भी जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इतने अच्छे कंपटीशन आप लोगों को करवाते हैं, आप लोगों ने बढ़िया इस यहाँ पर कंडक्ट किया है और अवार्ड देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी ये इंस्टीट्यूट, मेरा जो इनसे परिचय हुआ वो ऑनलाइन ही हुआ। मैंने भी खोजा उसमें कि मेरे नज़दीक कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ। फिर हम आए यहाँ पर, फिर बातचीत हुई तो काफ़ी अच्छा लगा। और आपके सर द्वारा आपको इतना सपोर्ट सहयोग किया जाता है, हर कोई टीचर इतना नहीं करते हैं, है ना। पढ़ा दिया चले गए, देख ही रहे हैं आप DC साइड में कैसा, हम तो रोज़ ही देख रहे हैं, वहीं पर जाते हैं डेली, तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। 100 की क्लास होती है, पढ़ा दिया तो आ रहा, जो नहीं आ रहा चलो हो गया। लेकिन आपको पर्सनली ये चीज़ें बताई जाती हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और आज आपने मुझे भी इन्वाइट किया और मुझे भी कुछ आपसे बातचीत करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत अच्छी बात बोली है कि जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होती है उतना ज़्यादा आपको हम्बल होना चाहिए, राइट। एंड जैसा कि सर ने बताया, जब आपके अंदर ये गुण होता है तो आप हर चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं ना, इट इज़ योर एटीट्यूड एंड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना एटीट्यूड हमेशा पोलाइटनेस वाला रखिए। ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। कहते हैं ना, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ज़माना पंख नहीं उड़ान देखता है। तो लोगों को रिजल्ट चाहिए। So we also have 2 more rewards for the people who have really performed well in different categories. For example, we have a reward that is play and win. That is for the quiz that we send you every day on YouTube under community tab, in which you have to answer and you also have to write your answer in the comment box.
और जिन लोगों के सबसे ज्यादा आंसर्स एक्यूरेट होते हैं उन लोगों को ये रिवॉर्ड मिलता है। और दिस टाइम अगेन दिस रिवॉर्ड गोज टू मिसेस उषा भाकुनी। एक बार जोरदार ताली। Popular mentor of the month, and that reward goes to Shashank. Well done. And I would also like to reward our anchors for their wonderful performance. What do you say, guys? They deserve? Thank you. And one more reward for the person who is behind the scene. That's Ritika. एक round of applause for her. I hope you all enjoyed the event. All the students have been possible without the presence of such a great audience. Thank you all for attending today's event and making it special. Many congratulations to all the reward winner and all the very best to those who couldn't make this time. Thank you everyone. So guys, let's start with the game. So, the first number. सबको हिंदी काउंटिंग आती है? Alright, जिनको नहीं आती वो तो हारेंगे. Alright, 32. 32. Number 5. As we know, the most interesting part of the day, that is potluck activity. So let's have a look. What have students got today? So guys, सबके पास आ रहे चेक करने के लिए. तो ये क्या है? कौन सी डिश है? पास्ता लास्ता. क्या बात है, क्या बात है. And this is पास्ता लास्ता पार्ट 2. वाओ. यहाँ पर देखिए ये सब लोग ऐसे ही चले आए सिर्फ खाना पीना खाने के लिए. कोल्ड ड्रिंक भी ये स्पॉन्सर्ड बाय एक्सीलेंट एकेडमी है. ऑलराइट, ये क्या है इसके अंदर? मोमोज. वाओ. तो मोमोज आ चुके हैं यहाँ पर. और यहाँ पर देखिए ये क्या चीज है बेटे? ये केक है. और ये केक आपने खाना भी शुरू कर दिया है? अच्छा अभी नहीं. ओके. और यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा टिफिन दिख रहा है. हाँ हाँ बिल्कुल. क्या है इसके अंदर? वी वुड लाइक टू हैव अ लुक. Wow, that's noodles, I guess, yeah? And we have jalebi, we have samosas, we have macaroni, we have chapati and आलू के गुटके. I must say कि कोई एक ही व्यक्ति लेकर के आया होगा. You are taking the credit. We have सफेद वाले छेने, and then we have भेल पूरी. Wow. Anything that we are missing? कुछ और है जो हम मिस कर रहे हैं? और देखो मोमोज की फोटो ले लो एक बार. That's it. All right, so let's enjoy.